بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے ناول کا پارٹ 7 لے کر آئی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو پہ لائک کمنٹ شیئر بھی ضرور دیجیے گا۔ آروشہ دھڑکتے دل اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ سیڑھیوں تک آئی تھی۔ دل تھا کہ اب بھی پسلیاں توڑ کر سینے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھالتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ قدم ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے پیروں میں جان ہی نہیں بسی ہو۔ جب کبھی بس نہیں چلا تو وہی آخری سیڑھی پر وہ ڈھہ سی گئی۔ حیا سے سرخ ہوتا اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ وہ اصلان میر تھا یا اس کا بھوت؟ مگر بھوت ایسی دل لبھانے والی پیاری باتیں تو نہیں کرتے، ایسے حواس تو نہیں چھینتے۔ وہ سزا دینا چاہتا تھا، مگر ایسی حواس اڑا دینے والی سزا؟ واقعی اس کی سزا تبدیل ہو گئی ہے، اور اگر ہو گئی ہے تو وہ تو گھٹنوں میں ہی چہرہ چھپائے ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پتھر پگھل گیا، مگر کیسے وہ اتنا رومانٹک کیسے ہو سکتا ہے؟ ناولوں میں پڑھ پڑھ کر امیجن کرنا اور تھا، مگر خود کے ساتھ ایسے رومانٹک سینز ہو تو کیسے جان نکلتی ہے، آج عروشہ کو پتہ چلا تھا۔ ابھی تک بس یہ سنا تھا کہ عورت مرد کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے، مگر کوئی مرد بھی سحر پھونک سکتا ہے۔ عروشہ سوچ سوچ کر گلابی ہوئی جا رہی تھی۔ ہاتھوں پیروں میں اب بھی سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے بالوں پر اصلان میر کے ہاتھوں کا لمس اور آواز سن کر وہ بوکھلا کر اچھلی تھی۔ بوکھلاہٹ میں وہ آخری سیڑھی سے گر کر زمین بوس ہوتی کہ اصلان نے کمال پھرتی سے اس کی کلائی جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت باندھ دی۔ اتنا بوکھلایا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ہانیہ کے ساتھ تو بڑی اونچی آواز میں ناولز پڑھ کر ہیروز کو شاباشی دیتی تھی۔ اصلان اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتا چہرے پر سنجیدگی طاری کیے سادگی سے کہہ رہا تھا۔ عروشہ نے ایک بار بھی سے پوری آنکھیں اور منہ کھول کر اصلان کی طرف دیکھا۔ وہ تو اسے جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا۔ اس انداز سے میری طرف مت دیکھو، کچھ دیر پہلے بھی اسی انداز نے مجھے کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس بار تو بس محسوس کیا تھا، اس بار پورا جام خالی کر دوں گا۔ اصلان کا دل ایک بار پھر مچل گیا۔ خود پر قابو رکھتے ہوئے وہ بے باکی سے بولا۔ عروشہ پر شرم نے ایسا حملہ کیا کہ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بری طرح سے مچلی تھی۔ آرام سے گرانا ہے کیا؟ اصلان مسکراتے ہوئے یوں ہی اسے کمر سے جکڑ کر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر باقی بچی سیڑھیاں اسی طرح اس کی کمر کو تھامے طے کی۔ عروشہ کے پاؤں ہوا میں تیر رہے تھے، اس کے شانے پر اپنے ہاتھ رکھے وہ پوری کوشش کر رہی تھی کیسے اس کی گرفت سے آزاد ہو جائے۔ بس کرو میری جان، اب تھک جاؤ گی۔ اصلان نے اسے لا کر ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیا اور اس کے دونوں پیر اپنی کمر کے ارد گرد کر کے وہ بہت شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جان، اس کے اتنے پیار سے جان کہنے پر عروشہ کو تو شوق ہی لگ گیا۔ یس مائی لائف۔ اس بار اصلان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگا لیے۔ اس کا سلگتا دہکتا لمس عروشہ کے پورے جسم میں کرنٹ بن کر پھیل گیا۔ اصلان پلیز، آپ کی تو جان ہی اس کی تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنے چاہے۔ ہش، اب کچھ نہیں۔ اصلان نے اپنی شہادت والی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ عروشہ کی گرین آنکھیں اس کے چہرے پر جا ٹھہری جہاں بس محبت ہی محبت پھیلی تھی۔ کہا تھا نا، جس دن میرے لم سے اس حسین چہرے پر ڈر کی نہیں شرم کی لالی کھلیں گی، اسی دن اصلان تمہارا ہو جائے گا، مکمل تمہارا۔ اس کے ہوش ربا شراپے سے اٹھتی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر اس نے عروشہ کا چہرہ تھام لیا۔ میں اب بھی بس تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہوں۔
بس تم میں ڈوب کر کھو جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے سحر میں ایسا جکڑ لو عروشہ میر کے اصلان میر اپنے ہوش ہی بھول جائے۔ عروشہ کی گردن پر اصلان کے ہاتھ سرسرا رہے تھے اور آنکھیں بند کیے وہ اپنی سانسوں سے عروشہ کے چہرے کو جلا رہا تھا۔ آہستہ سے جھکتے ہوئے اصلان نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ عروشہ کی جان ہتھیلی پر آ گئی، ایک بار پھر سانسیں تھم سی گئی۔ وہ اصلان کے شانوں کو اپنی مٹھی میں بھر رہی تھی۔ چھوا تو اصلان نے پہلے بھی تھا مگر تب صرف خوف آتا تھا، مگر آج تو رگے جاں میں جیسے خون پوری رفتار۔ اصلان پلیز، اس کی تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنے چاہے۔ وہ لگاتار اس کی گردن پر اپنے لبوں کو آہستہ آہستہ پھرا رہا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ اصلان نے اپنا چہرہ اٹھا کر عروشہ کو دیکھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ ہولے ہولے لرز رہی تھی، مگر چہرے پر ایسی لالی بکھری تھی کہ اصلان میر یک ٹک اسے حسین پری کو دیکھنے لگا۔ اب لبوں کا لرزنا ایسا قاتلانہ تھا کہ تم تو مجھے تباہ کر دو گی۔ اس بار وہ جیسے بے بس سا ہو کر اس کی تھوڑی پکڑ کر جھکا اور پوری شدت سے ان لبوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں جکڑ ہی لیا۔ عروشہ نے اصلان کی شرط اپنی مٹھی میں بھر لی۔ وہ مچل کر اس سے دور ہٹنا چاہا۔ اصلان میر کی شدت اور بڑھی تھی۔ عروشہ کی مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اس کی کلائیوں کو جکڑ کر اس کی پشت پر باندھ دیا۔ عروشہ پوری طرح بے بس سی ہو کر اس کی پیار کی شدت برداشت کرنے لگی۔ جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ اب سہ نہیں پائے گی، تب تک اس کے ہونٹوں کو اس نے آزاد نہیں کیا تھا۔ آئندہ جب تک میں نہ چاہوں تو مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عروشہ کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس نے پیار سے تنبیہ کی تھی، اور چاہے مار ڈالے مجھے۔ اپنے ہونٹوں پر ہوتی جلن کو ہاتھوں سے چوح کر وہ جل کر بول اٹھی، مگر اصلان کی مخبور ہنسی سن کر اس نے بلش ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ اصلان اسی خمار بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے بے تحاشا سرخ ہوتے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ عروشہ اس کی گہری بے باک نظروں سے پگھلی جا رہی تھی۔ اصلان جانے دیں، اب بہت مشکل سے اس کے حلق سے آواز نکلی، جاؤ نا، میں نے روکا ہے۔ اس کی شوخی پر عروشہ کی شکل پر 12 بجے تھے۔ اسے پوری طرح خود کو گھیرے ہوئے دیکھ کر وہ رونے شکل والی ہو گئی۔ اچھا، اب ایسی شکل تو مت بناؤ جس پر ترس آ جائے۔ وہ شرافت کے موڈ میں آتا اس کے سامنے سے ہٹ کر کنارے ہو گیا۔ عروشہ موقع غنیمت جان کر جھٹ سے ٹیبل سے کود کر کچن کی طرف بھاگی تھی۔ کھانا میں نے پہلے ہی آرڈر کر دیا تھا، وہ آ گیا ہوگا، میں لے کر آتا ہوں۔ اصلان اس کے پیچھے ہانک لگا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تو عروشہ بے تحاشا خوش ہو کر پلٹی۔ اول تو کھانا بنانے کے ہنر سے ناواقف تھی اور کوئی پریکٹس کرنے کا تو اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ اصلان کی مہربانی پر وہ خوشی خوشی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ اماں جان صحیح کہہ رہی تھی، لگتا ہے اب جلدی ہی خوشیاں آنے والی ہیں، جو آلریڈی شروع ہو چکی ہیں۔ اب ان خوشیوں کی مدت کتنے دن کی تھی یہ صرف خدا جانتا تھا، اور اس کے بعد اصلان، جس کے ارادے سے سب بے خبر تھے۔ اصلان پارسل لے کر دوبارہ اندر آیا تو عروشہ کو صوفے پر بیٹھ کر خیالوں ہی خیالوں میں کھویا، اور مسکراتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ رینگ گئی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں ایسا گم تھی کہ اصلان کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر سکی۔ اصلان کو اس کی بے خودی بری لگی۔ وہ عروشہ کے دل و ذہن پر اس طرح حاوی ہونا چاہتا تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی آواز سے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیں۔ ہر مقصد گام پہ گام طے ہوتا ہے، جلد ہی ایسا ہوگا اصلان میر، عروشہ تجھے دیکھ دیکھ کر ہی سانسیں لے گی۔ اپنا عزم دہراتے ہوئے اصلان کھانے کا پارسل ٹیبل پر رکھ کر آہستہ آہستہ چل کر صوفے تک آیا۔
सोफे की पुश्त पर आकर वो निचले लबों को दांतों तले दबा कर झुका था। जैसे ही उसने अरुषा के कानों में फूंक मारी, वो डर कर चीखती सोफे से उछलकर खड़ी हो गई थी। हद है यार, ए फूंक से डर गई। सोफे की पुश्त पर अपनी हथेलियां रखकर वो होले से हंसा था। डराने की क्या ज़रूरत थी? अपनी बेखुदी पर जी भरकर शर्मिंदा होती वो, उसकी गहरी नज़रों से कंफ्यूज होती, ख्वाह अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। खाना इधर ही है, जाकर निकाल दो। इस बार असलान ने उसे और सताने का इरादा छोड़कर उंगली से डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। आवाज़ में बस नरमी और प्यार ही था। अरुषा सर हिलाती उधर बढ़ गई तो असलान घूम कर आकर उसी सोफे पर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी थी। अपना मोबाइल उठाकर वो चेक करते हुए अरुषा की पुकार का मुंतज़िर था। असलान खाना लगा दिया है। चंद मिनटों के बाद उसकी पुकार पर वो मोबाइल वहीं छोड़कर डाइनिंग टेबल तक चला आया। भूख नहीं है क्या? जब तक वो हाथ धोकर वहां आकर बैठा, अरुषा उसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठी रही थी। उसे इतने लजीज खाने पर टूटते नहीं देखकर असलान को ताज्जुब हुआ। कोहनी टेबल पर रखकर अरुषा को जांचा। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, अरुषा ने चमकती आंखों से असलान को इन्फॉर्म किया। असलान ने एकदम से मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखकर गर्दन मोड़ ली। बार बार अपनी शहादत वाली उंगली से नाक रगड़ता वो अपनी बेसाख्ता आने वाली हंसी पर काबू पा रहा था। असलान, आप हंस रहे हैं ना? अरुषा को शक हुआ था वो अपनी हंसी दबा रहा है। मशकूक नज़रों से उसे देखा नहीं तो जब वो जल्दी से नाक सुकेड़ता, लबों को दबाता, होंठ से सांस खारिज करके खुद पर काबू पाकर बस हल्के से मुस्कुराया। खाना शुरू करें? मुस्कुराहट में होंठ हिलाकर उसने अरुषा को डिश की तरफ मतवज्जा किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर हंस रहे हैं। अपनी प्लेट से पहले असलान की प्लेट में खाना सर्व करते हुए अरुषा का मुंह फूला। नहीं यार, बस शौक लगा, जैसे अभी लगा। तुम्हें बजाय खुद के मेरी प्लेट में खाना सर्व करते देखकर असलान इस बार उसे छेड़कर मज़ा लेने लगा। ये मत सोचे आपके अच्छे हो जाने की वजह से ऐसा है। वो तो माँ जी ने इतनी लंबी चौड़ी हदायत दी थी, इसलिए कर रही हूँ। वो हाथ के इशारे से लंबा चौड़ा बताती उसकी गलतफहमी दूर करने में लग गई। रेली, तुम तो बड़ी फर्माबरदार बन गई हो माँ की। बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम जब जब हवेली गए हैं तब तब माँ ने तुम्हें इतना ही लंबा चौड़ा शोहरनामा बताकर भेजा था। असलान आराम से उसका खून जलाता मुंह में लुकमा डाल रहा था। आपका मुंह मतलब मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। उसके इतने ही कहने पर उसे गुस्सा आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर हंस रहे हैं। अपनी प्लेट से पहले असलान की प्लेट में खाना सर्व करते हुए अरुषा का मुंह फूला। नहीं यार, बस शौक लगा, जैसे अभी लगा। तुम्हें बजाय खुद के मेरी प्लेट में खाना। नो यार, तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो, बस सोने और खाने वाले मामले में छोड़कर। असलान ने एक हाथ बढ़ाकर उसका गाल चुटकी में दबाकर नोच लिया। दिल जलाना तो कोई आपसे सीखे। मुंह टेढ़ा करके वो अपनी प्लेट की तरफ मतवज्जा हो गई जो अब तक खाली थी। बहुत हो गया अच्छी बीवी बनना, अब अपनी पेट पूजा। उसने सबसे पहले रोस्टेड अपनी प्लेट में भरा। एक बात बताओ मिसिस, जल्दी जल्दी खाती है? अरुषा से असलान ने बहुत ही संजीदगी से पूछा। क्या? खूब चटनी में डुबोकर उसने लेग पीस दांतों में से खींचा और बमुश्किल चबाते हुए असलान को देखा। जब से शादी हुई है ना, तब से ये सवाल मेरे दिल में मचल रहा है। आज पूछ ही लेता हूँ। उसके फास्ट चलते मुंह को देखकर वो गौर से देख रहा था। क्या अभी मुंह खाली भी नहीं हुआ था? इस बार चावल का चमचा भी मुंह में भर लिया। ये तुम इतना खाती हो, आखिर जाता कहाँ है? तुम्हारी नाजुक कमर का साइज देखकर लगता है पेट भी छोटा होगा। इतना सब कुछ तुम्हारे छोटे से पेट में एडजस्ट कैसे होता है? वो सच में ताज्जुब करता था इस लड़की के खाने की स्पीड पर। उसे उसके खाने पर एतराज़ नहीं था, बस हजम हो जाने पर हैरत थी। आप क्या जाने बचपन से प्रैक्टिस की है हशम और हानि के साथ। हम तीनों शर्त लगाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही जीतती थी। तब से आदत बन गई है और अल्लाह का शुक्र है स्मार्ट की स्मार्ट हूँ। सब उसके खाने पर इतना टोक चुके थे कि वो अब ढीठ बन गई थी, अलबत्ता बस खाने और सोने में।
ابھی بھی असलान के कहने पर भी लापरवाही से शाने झटक कर अपना काम जारी था। तुम ये मत समझो कि मुझे कोई एतराज़ है, बस हैरत होती है कि सब जाता किधर है। वो हंस कर कहता गिलास में पानी अंडेलने लगा। उसका पेट भर चुका था और आरुषा का साथ देने का उसका कोई इरादा नहीं था। आपकी इसी मेहरबानी पर तो सारी खताएं माफ़ कर दी है मैंने। मुझे आप तब भी अच्छे लगते थे जब जालिम देव बने रहते थे, लेकिन इस देव की एक खास बात थी, उसने मुझे खाने और सोने पर कभी टोका नहीं। वो ऐसी ही थी, साफ और पकीज़ा दिल वाली परी, कभी सोच समझ कर बोला ही नहीं। अब भी बड़े आराम से अपनी बात कह दी। असलान पानी पीकर उठ गया। खाती हुई अरुषा की कुर्सी की पुश्त थाम कर वो उसके कान के पास झुका। आरुषा ने सर घुमाकर उसे देखना चाहा। ऐसे ही बैठी रहो, बस मुझे सुनो। नरमी से उसका सर सीधा करते हुए वो अरुषा के कान के पास दोबारा बोला, मुझे तुमने ऐसे ही दीवाना बनाया है अपनी इसी मासूमियत का। मुझे तुम्हारे खाने और सोने से इश्क है, बेतहाशा मोहब्बत है, बिला वजह के रोने और डरने से। मैं आशिक हूँ तुम्हारी पट पट चलती ज़बान का, और जान भी दे सकता हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर। सो कैरी ऑन, जो दिल कहे वो करो। मैं कभी ना टोकूंगा ना रोकूंगा। बस इस मासूमियत को कभी ख़त्म ना होने देना। असलान अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसके कानों में रस घोलता, फिर अपने होंठों का लम्स गर्दन पर छोड़ता मुड़ गया। जाते जाते टेबल से मोबाइल उठाकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। अरे अरुषा दुगनी स्पीड से धड़कते दिल और खाती सोच रही थी, काश इस वक्त उसके हाथ में मोबाइल होता तो वो हानिया से कहती, उसने देव का दिल जीत लिया। अम्मा जान को हंसकर बताती कि वो अच्छी बीवी बन चुकी है। अरुषा ने आहिस्तगी से बेडरूम के डोर पर हाथ रखकर धक्का दिया था। हौले हौले कदम उठाती वो अंदर आई थी। हाथ में उसके काफ़ी का मग था। असलान की आदत थी खाने के बाद काफ़ी पीने की। वो जल्दी जल्दी खा कर सब समेट कर इधर आई थी। असलान उधर रूम में नहीं था, वो बालकनी की तरफ का ग्लास डोर खुला हुआ था। अरुषा एक गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए बालकनी तक चली आई। उसकी आहट पाते ही असलान मुड़कर रेलिंग से टेक लगाकर अपनी तरफ आती अरुषा को देखने लगा। हाथ की उंगली में जलती सिगरेट दबी थी। अरुषा उसकी नज़रों से फिर से नर्वस होने लगी। हाथ में पकड़े मग पर गिरफ्त सख्त हो गई थी। असलान उसकी हालत से लुत्फ अंदोज होता सिगरेट उठाकर कश लेकर धुआं हवा में छोड़ रहा था। आपकी काफ़ी करीब आकर मग उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स। असलान ने उसी अंदाज में देखते हुए काफ़ी पक्का मग थाम लिया। जैसे ही उसने मग उसके हाथों से लिया, अरुषा तेज़ी से जाने के लिए मुड़ी। कुछ देर रुक सकती हो? असलान के बेसाख्ता कहने पर वो होले से मुड़ी थी। हल्के से मुस्कुराकर वो कदम कदम चलती। उससे ज़रा फासले पर खड़े होकर रेलिंग पर हथेली रखकर वो लॉन का नज़ारा करने लगी। असलान उंगली के बीच सिगरेट दबाकर उसी हाथ से मग जकड़कर काफ़ी के घूंट भरने लगा। निगाहें अभी अरुषा के चेहरे पर थी। उसकी नज़रों का इर्तिकाज से घबराकर उसने यूं ही उसकी तरफ मुड़कर पूछ लिया, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? उसके सवाल से असलान के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। माई लाइफ, जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे सोने और खाने पर टोकता नहीं, वैसे ही मैं ये चाहूँगा तुम मेरी आदतों पर भी एतराज़ मत जताओ और ना ही रोक टोक करो। आवाज़ नरम थी मगर साथ ही एक तनबीह छुपी थी, जिसे महसूस करके अरुषा खामोशी से सर झुकाकर अपने स्लीपर देखने लगी। मैं कुछ अलग टाइप का बंदा हूँ अरुषा। हो सकता है मेरी बहुत सी बातें तुम्हें नागवार गुजरे, मगर इन सब के बावजूद इतना जान लो कि असलान मीर के लिए तुम बहुत खास हो। वो अरुषा असलान मीर का कैदी होने लगा था। उसने एक बार फिर अपनी खूबसूरत बातों का जादू अरुषा पर चला दिया था। उसने सर उठाकर असलान के चेहरे की तरफ देखा। उसके पुरकशिश चेहरे पर मोहब्बत के साए बहुत ही भले लग रहे थे। असलान ने जल्दी सिगरेट फर्श पर फेंक कर स्लीपर से मसल डाली, फिर गरम गरम कॉफ़ी का घूंट भरकर मग वहाँ रखी टेबल पर रख दिया। इस बीच आरुषा ने बस उसे देखने का शुगल जारी रखा था। वो फिर से अरुषा की जानो मतवज्जा हो गया था। उसका देखना था कि अरुषा ने उसके देखते ही अपनी निगाहें झुका ली। असलान ने करीब खड़ी अरुषा का हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। अरुषा ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस एक निगाह असलान को देखकर निगाहें झुका ली।
आरुषा, मैं तुमसे अपने पिछले रवैये की कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं खुद को गलत नहीं समझता। निगाहें झुकाकर गौर से सुनती आरुषा ने फौरन पलकें उठाकर शिकवा भरी नज़रों से उसे देखा। असलान उसकी आंखों से झलकती शिकायत पढ़कर सर झटक कर होले से मुस्कुरा दिया। आपने उसके लबों पर शिकवा मचला। हिश, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे टोके। आरुषा ने कुछ कहना ही चाहा। असलान ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर खामोश कर दिया। वह खामोशी से अपनी आंखों से अपने शिकवे बयान करने लगी, जिसे पढ़ते हुए असलान ने अपनी उंगली उसके लबों से हटाकर फिर से बोला, लाख तुम मुझे ऐसे ही शिकायती निगाहों से देखो, मगर मैं अपने पिछले रवैये पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। तो फजूल में कोई माफ़ी तलाफ़ी मांगू? अपनी जगह पर मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने कोई नुकसान तुम्हें नहीं पहुँचाया, अपना कोई हक नहीं जताया, बस ज़रा सी शिद्दतें दिखाई थी। असलान संजीदगी से कहते कहते आखिर में लापरवाही से कंधे उचकाए। ज़रा सी थी, भूल गई पहली रात क्या किया था। अपनी शादी की पहली रात कोई अपनी इतनी फूल सी कमसिन दुल्हन को ऐसे टॉर्चर करता है जैसे आपने किया था। उफ, मैं बेहोश नहीं हो गई होती तो आप तो मुझे मार डालते। वो अरुषा थी, जब दिमाग खराब होता ऐसे ही टर उसकी ज़बान चलती थी। उसके ज़रा सी कहने पर वो जैसे तड़प ही गई। असलान उसका हाथ छोड़कर सीने पर हाथ बांधकर एक हाथ की उंगली अपने होंठों पर रख कर उसे लड़ते हुए देखने लगा। आपने उसके लबों पर शिकवा मचला। उसके बाद फिर रोज़ सुना आपने, रोज़ कहने के साथ साथ उसका बाजू फिर ज़ोर से हिला डाला। मेरे चेहरे, मेरी गर्दन, मेरे बाजू सब जहाँ काटा नोचा, यहाँ तक कि एक बार सिगरेट तक दाग दी मेरे बाजुओं पर। अभी भी निशान मौजूद होगा, दिखा देती हूँ आपको। वो गुस्से में पागल सी होकर अपना दुपट्टा शानों से हटाकर एक बाजू से आस्तीन ऊपर करके अपने बाजुओं पर जलने के निशान ढूंढना शुरू कर चुकी थी, मगर निशान होता तो मिलता ना। अरे मिट गया। वो हैरत से अपने बाजुओं पर अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि निशान मिल जाए। लो, कोई सबूत नहीं, तुम्हारे सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, इसलिए मैं क्यों माफ़ी मांगू? असलान ने अपने हाथ झाड़कर सारा किस्सा ख़त्म कर दिया। नहीं असलान, था निशान, कुछ दिन पहले था। आरुषा ने मुंह बनाया। निशान होता तो वो साबित तो कर सकती थी कि उसने जुल्म किया है। आप बहुत चालाक हैं, इसीलिए जख्म देकर मरहम लगा देते थे ताकि बाद में मैं कोई शिकायत ना कर सकूं। ज़रूर आपने मेरे बाजुओं पर भी रोज़ मरहम लगाया होगा। कितने चालाक हैं। वो दांत पर दांत जमा कर असलान की हंसी जब्त करते चेहरे को देख रही थी। वो उससे नाराज़ होकर मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। असलान उसके बच्चों की तरह नाराज़ होने पर मुस्कुराया। ज़्यादा गम हो रहा है, लाओ फिर से काट लेता हूँ। आराम से सबूत दिखाती रहने एकदम से संजीदगी से कहते कहते उसका बाजू अपनी तरफ खींच लिया। नहीं नहीं, दर्द होता है। आरुषा ने घबरा कर बाजू छुड़वाना चाहा। अब तो करके ही रहूँगा। असलान उसकी मज़ाहमतों के बावजूद ज़बरदस्ती उसकी आस्तीन ऊपर करके उसके खुले बाजुओं पर झुका था। आरुषा ने कसकर आंखें मीच ली, पर दूसरे ही लम्हे तड़प कर आंखें खोल दी। उसके लबों की शिद्दत से वो लर्ज गई थी। अच्छा नहीं लगा, फिर करूं? असलान ने शौकी से अरुषा का सुर्ख होता चेहरा देखा। वो बुरी तरह से शर्मा कर अपनी सारी ताकत जमा करते हुए अपना बाजू छुड़ाने लगी। अजीब लड़की है, पहले शिकायत करती है, जब मरहम रखना चाहूँ करने नहीं देती। असलान उसका बाजू छोड़कर मसनूई संजीदगी से बोलता उसे देख रहा था। आप मुझे आज मार डालेंगे क्या? वो शर्म से लर्ज कर अपने चेहरे पर हाथ रख अरसलान की तरफ से रुख मोड़ चुकी थी। असलान को इसकी यह अदा बहुत ही प्यारी लगी थी। रुख फेर कर खड़ी अरुषा की कमर में हाथ डालकर उसकी पुश्त अपने से लगा दी। असलान के हाथ अपने पेट पर कसते देखकर अरुषा की हालत और भी गैर हुई थी। माई क्यूट सी बीवी, आपको मार नहीं रहा हूँ, आने वाले हसीन पलों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, वरना शादी वाली रात की तरह सारा मज़ा किरकिरा ही करोगी। जाने मन बेबाकी से उसके कान में कहता अरुषा के पूरे जिस्म में लर्जिश ला चुका था। इस बार बस मोहब्बत होगी, शिद्दतें होगी, मगर वहशत नहीं, हैवानियत नहीं, इसलिए खुद को तैयार कर लो। असलान मीर की मोहब्बत झीलने के लिए ओके। उसकी गर्दन की पुश्त पर अपने लबों का सुलगता लम्स छोड़कर वो उसे छोड़कर बालकनी से चला गया। अल्लाह, ये इनको क्या हो गया है एकदम से? अरुषा उसके जाने का यकीन करके चेहरे पर अपने हाथ हटा कर चलती हुई वहीं एक तरफ खड़े एक तरफ पड़े काउच पर ढेर हो गई। इसके साथ ही गाइस आज के पार्ट का दी एंड करते हैं। अगर आपको आज की किस्त पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर दीजिएगा।
اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور تمام امت مسلمہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ